Morning, everyone. Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, good morning. Any questions from what we discussed yesterday? Morning. Yes, I have about this. Again, I'm not able to observe that cost of goods sold and all that, because we are converting inventory to a saleable product in form of cost of goods sold, and how it is not impacting the sales. So इसमें where are we converting inventory to sales? Where are we talking about inventory to sales? So यहाँ पे, so let me plot the life cycle. What's the life cycle of this? So the life cycle is you purchase raw material. This raw material gets converted to semi-finished product. Okay, and then it gets converted to inventory, and then it converts to sales, and then debtors, and then cash, and then back to raw material. ये raw material is same जो ये यहाँ पर है, तो ये cycle होता है. That is okay. This cycle I know, but inventory to cost of goods sold, there is a difference. So now, according to you, ये जो ratio है, ठीक है, inventory turnover ratios, मैं इसको भी यहीं पे लिख लेता हूँ so that. So this is cost of sales divided by average inventory. No, I'm saying cost of goods sold is cost of goods sold भी ले लेते हैं, चलो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है. So cost of goods sold upon average inventory. अब आप मुझे बताओ, ये जो रेशियो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, आपके हिसाब से ये जो साइकिल मैंने प्लॉट करी है, इस साइकिल में कहां से लेकर कहां तक कवर कर रहा है? From what point to what point this ratio is covering in this cycle? From raw material to inventory. Inventory के बाद जो आप what we are saying that inventory we have to add some cost, and it is after that it will convert it into a saleable product. Yesterday what we have discussed, that inventory we have to incur a certain cost, and with that certain cost the goods are ready for sale. Yeah. So is this ratio, and why we are doing it? Inventory, why we are converting it into saleable good? Because we have some certain orders. Otherwise we will not necessary, no? It can be and cannot be. हाँ ठीक है, एक मिनट. सो ये रेशियो इस साइकिल में कहाँ तक कवर कर रहा है? इन्वेंट्री तक कवर कर रहा है कि सेल्स तक कवर कर रहा है? वो बताओ आपके हिसाब से. तो यही प्रॉब्लम है, रूट कॉज है. That is what I am asking. In one inventory to sales, there is a
there is a मैं करता हूँ there is one more point. दीपक, It's the cost of goods sold. हाँ मैं करता हूँ उसको एड्रेस. आप मेरे क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप आंसर करो, देन इट विल कम टू द पॉइंट जहाँ पे आपकी कोई रिजॉल्व हो जाएगी. ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. मैं जो पूछ रहा हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करो. ठीक है, सो आई विल रिपीट माय क्वेश्चन. इस साइकिल में ये रेशियो कहाँ तक कवर कर रहा है? इज दिस रेशियो कवरिंग टिल इन्वेंट्री और कवरिंग टिल सेल्स और कवरिंग एनी पॉइंट आफ्टर दैट? कहाँ तक कवर कर रहा है? In inventory plus the conversion cost of inventory to sellable product, which is यही गलती है. ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम है. अब सुनो ध्यान से. ये रेशियो सिर्फ यहीं तक कवर कर रहा है, इन्वेंट्री तक इतना कवर कर रहा है. जो कन्वर्जन कॉस्ट या जो भी कॉस्ट है वो यहां पर ऐड होती है. ये इस रेशियो में कवर नहीं हो रहा. एनीथिंग आफ्टर दिस प्रोसेस, मैं दूसरे कलर से प्लॉट करता हूं. जो ब्लू से मैं प्लॉट कर रहा हूं, इसको पार्ट 2 कर देते हैं साइकिल का और इसको पार्ट 1 कर लेते हैं. ठीक है, ये रेशियो सिर्फ पार्ट 1 कवर कर रहा है. दिस रेशियो इज नॉट कवरिंग एनी जर्नी आफ्टर इन्वेंट्री. So we can say that cost of goods sold is equal to inventory. Cost of goods sold is the cost of the inventory, not the cost. This cost of goods sold does not include any of this conversion cost, which is indirect cost. जो मैंने कल भी बताया था, ये cost of goods sold सारा वो direct cost है जो आप inventory को attribute कर सकते हैं. ठीक है, any cost that is incurred after your inventory is created to sell the product. Let's say आप sales agent को sales commission दे रहे हैं. Carriage outward है, यानी आपकी फैक्ट्री से आपके रिटेल स्टोर पे जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, आपकी पैकिंग, फाइनल पैकिंग कॉस्ट है, वो सब ये इन्वेंट्री बनने के बाद इनकर होती है. ये यहाँ इंक्लूडेड नहीं है इसमें. That's understood. जब हम P&L में ग्रॉस मार्जिन निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. So अगर ये रेशियो, this numerator is what? That cost of goods sold or what? Yes, that is cost. That is the cost of goods sold. उसमें भी सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और उसमें आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट या उस तरह की जो पैकिंग होते हैं, कैरेज आउटपुट होते हैं, वो सब एक्सक्लूडेड होते हैं. ये वही है. वो तो ग्रॉस मार्जिन के नीचे चला जाएगा. वो तो वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना ये. तो यानी इसमें कोई कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है. तभी तो मैंने कहा कि ये जो साइकिल है, इस साइकिल में ये सिर्फ इतने ही पीस को कवर कर रहा है. उसके आगे का कवर ही नहीं कर रहा है. तो बिकॉज उसके आगे का कवर नहीं कर रहा है, तो ये वाले पीस को आप मत कंफ्यूज हो. आप इस पीस में कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे जो कन्वर्जन कॉस्ट है, जो सेल्स है, वो कहाँ पे गया. एग्री, वो इसमें आया ही नहीं है. करेक्ट, क्योंकि हम इसको देख ही नहीं रहे. ये रेशियो यहाँ खत्म हो रहा है. उसके लिए अलग रेशियो है, नेक्स्ट रेशियो आने वाला जो इस पीस को कवर करने वाला है. मेरा अभी भी पॉइंट वही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम कह रहे हैं, वी कैन से दैट इट्स इन सॉर्ट ऑफ इन्वेंटरी विदाउट इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेलेबल प्रोडक्ट. करेक्ट, इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है, करेक्ट, ये वही है. But why we are creating that? What is the reason to have that value? If it is equal to inventory, can we say that it's not equal to inventory? It's not equal to inventory. जो denominator है वो average inventory है ना. हाँ, means it's not equal. Mathematically it's not equal. अब देखो, आपका जो एक ईयर है, जिस ईयर का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, लेट्स अज्यूम वो 2019 है. ठीक है, एंड आप जो ईयर फॉलो करते हो वो 1 Jan to 31 December फॉलो करते हो. यू मीन्स जिस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं. ठीक है, सो 1 January to 31 December, सॉरी 1 January to 31 December 19 ले लेते हैं. ठीक है, अब इस ईयर की दो चीजें. okay. Opening and closing and divided by 2. This is an average. नहीं, रुक एक सेकंड. अब
2019 की जो बैलेंस शीट होगी, which is as on 31st December 19, इसमें इन्वेंट्री की वैल्यू होगी, ठीक है। लेट्स assume that is 100 rupees. सिमिलरली इस 2019 का एक P&L होगा जो फॉर द ईयर 2019 है, उसमें कॉग्स होगा, ठीक है। ये लेट्स अज्यूम मान लो 500 रुपए, ठीक है। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो ये डिनोमिनेटर है, ये सिर्फ ये 100 रुपीज नहीं है। जो पिछले साल की बैलेंस शीट होगी, लेट्स अज्यूम बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 18, उसका जो इन्वेंट्री होगा, लेट्स अज्यूम 300 और व्हाटएवर इज द इन्वेंट्री, ये इन दोनों का एवरेज है ना। तो नॉट नेसेसरी दैट दिस and this average value turns out to be equivalent to this. Sorry, I'm not saying that. I'm not saying that equal in the sense of values, equal in the sense of the ingredients of the cost. हाँ, वो सेम ही होंगे ना, वो सेम ही होंगे। अगर आप बोल रहे हो कि conceptually will this turn out to be same, the answer is yes. Mathematically, that's why we are comparing these two variables, correct? Because ये दोनों variables का conceptually interlinkage है। बट अगर आप मैथमेटिकली इक्वल पूछ रहे हैं तो वो नहीं होगा। बट अगर आप कंसेप्चुअली पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आइटम वाइज कि हाँ, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जो इन्वेंट्री की कॉस्टिंग होती है, क्या दिस विल कॉन्स्टिट्यूट टू बी अ सिमिलर कॉन्सेप्ट? द आंसर इज यस। उसमें वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे रह रहा होगा या सिमिलर प्रिंसिपल फॉलो कर रहा होगा। इसको सिंपल रखने के लिए अगर मैं आपकी एम्बिग्यूटी को हटाना चाहूँ ना, जो आप आई थिंक कंफ्यूज है, अगर मैं इस रेशियो को ऐसे कर दूं ना, सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, दिस इज व्हाट यू वांट, ये आपकी कंफ्यूजन है। This अगर मैं is ये not I want. नहीं, ठीक है, अगर ये रेशियो होता, अगर ये रेशियो होता ना, तो इस रेशियो में ये यहां तक कवर करता साइकिल को, करेक्ट। ये वाला जो पीस है, ये पीस भी कवर हो जाता। तो यानी जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना यहाँ पे, Conversion cost plus gross margin. सब कुछ इंक्लूडेड हो गया सेल्स में, सब कुछ इंक्लूडेड हो गया है। बट जब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया था ना, तो ये चीजें इंक्लूडेड नहीं थी यहाँ पे। मेरा मार्जिन इंक्लूडेड नहीं है, मेरा कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ कॉस्टिंग पे खेल रहे। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, वो सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट होता है। उसमें कॉस्ट, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट, उसमें ना इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड होते हैं, ना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड होता है। Okay. तो ये डिफरेंस है। तो जो मैनेजमेंट अपनी इन्वेंट्री को सेल्स से एनालाइज करना चाहती है, ठीक है, दे आर फ्यू बिजनेसेस जिनकी सेल्स को हम इन्वेंट्री से एनालाइज करते हैं, ठीक है। वहां पे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाके ये रेशियो को एनालाइज करते हैं। अगर आप ये रेशियो देखोगे, सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, आपको थियोरेटिकली बुक्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। बट एज आई सेड, वी डोंट stick only to the rules of the book. अगर हमें जरूरत है कि सिचुएशन में it's making sense, so वहां पे from a forensic perspective, from forensic ratio perspective, we sometimes are required to
go beyond that, and this is one of those ratios we use that. And why it is against the accounting principle? Because अगर आप देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉन्सेप्चुअली अलग प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं. जो न्यूमरेटर है वो कॉस्ट वैल्यू नहीं है, वो बहुत बड़ी वैल्यू है जिसमें आपके मार्जिन भी इंक्लूडेड है. बट जो डिनोमिनेटर है वो कॉस्ट वैल्यू है. सो इट इज Ingredients are not so. करेक्ट. तो अब आप ऐसे समझ लो, आप एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की परफॉर्मेंस को सेकंड क्लास के बच्चे की परफॉर्मेंस से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो. So this which is not correct from an accounting recognition principle, correct? But अब हम यहाँ पे वो कर रहे हैं because management want to understand कि मेरा इन्वेंट्री का सेल्स का क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, अगर जरूरत है उस नेचर ऑफ द बिजनेस करें, बट अकाउंटिंग रूल्स के लिए इसलिए आपको बुक्स में थ्योरेटिकली ये रेशियो नहीं मिलेगा. आपको हमेशा इन्वेंट्री का जो रेशियो मिलेगा वो कॉस्टिंग साइड पे मिलेगा, ये वाला जो. अब टेक अ मिनट और सो एंड अब बताओ इसमें कौन सा पीस या कौन सा आपको बिल्डिंग ब्लॉक है जो कंफर्ट में नहीं है या जो अभी डाउट है, एंड आई विल फोकस ऑन दैट बिल्डिंग ब्लॉक देन. For now, we can proceed further. So, any question I can put in the next class also. ठीक है. Anybody else? Any other question before I move further? Okay. I take that as no question. So, So ये हो गया था कल. So moving. Next is inventory conversion period. इसका थ्योरी आप देख लीजिए. So inventory conversion period is 365 divided by inventory turnover ratio. 365 का simple assumption ही है, assuming 365 days in a year. ठीक है, so वो logic 365 आया, which not fixed के 365 ही ले रहा है. Some of the software uses 360 days, some of the software uses the actual days after removing the holidays for the business, and so on. Okay, so the numerator is number of days in the year, and the denominator is what we have just discussed, which is inventory turnover ratio. Okay, so एक बार theory देख लेते हैं before I move to forensic piece. So the inventory conversion period is essentially the time period during which a company must invest cash while it converts material into sale. ठीक है, अब ये वो रेशियो है जो हम पिछले पोर्शन में कवर नहीं कर रहे थे. अब ये रेशियो उस पोर्शन को कवर कर. ठीक है, सो inventory conversion period is essentially a time period during which a company must invest cash while it converts material into sale. Less the inventory conversion period is better because more faster we convert our inventory into sales, and there will be less chance of the obsolescence paying overstock. So what does this mean? So मेरा अगर inventory suppose मेरा inventory conversion period 60 days है, ये days में आंसर आता है. 60 days है. What does it mean? It means मैं on an average 60 days लगते हैं मुझे ये 60 days लगते हैं for converting my cash to material to sale. जो साइकिल है यहां तक कवर करता है पैसा. जो कन्वर्जन पीरियड का रेशियो है वो आपका ये वाला एडिशनल लेग भी कवर कर रहा है कि आपको कितना टाइम लगता है सेल्स तक पहुंचने. हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? तो फॉर सिंप्लिसिटी के लिए सपोज अगर मैं 360 अपॉन 4 ले रहा हूँ, सो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 आया है, एंड मैं डेज इन ईयर 360 ले रहा हूँ, तो दिस वुड बी 360 डिवाइडेड बाय 4.
90 days is what I'm looking at to convert my cash to inventory to sales. अब एक और चीज ध्यान रखना, this ratio it does not cover this piece. कलेक्शन कवर नहीं करता है ये, यानी कुछ सेल्स अगर डेटर्स में हुई और डेटर्स से कैश रिकवरी, ये वो कवर नहीं करता है ये वाला साइकिल. ये सिर्फ सेल्स तक जाता है. सेल्स के पास पैसा आया नहीं आया, डेटर बैड डेट हुआ नहीं हुआ, ये वो वाला पीस को कवर नहीं करता है, वो नेक्स्ट रेशियो कवर करेगा. तो एक एक स्टेप करके आगे मूव हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें. कोई डाउट यहाँ तो बिफोर मूव हो? ठीक है. देखिए, दिस इज व्हाट आई सेड. ये लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या है ये? दिस रेशियो डज नॉट टॉक अबाउट द पेमेंट. आपने सेल तो कर दिया बट बहुत लंबा पीरियड पेमेंट टर्म्स का कर दिया कस्टमर का, तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं आती. ठीक है. सिमिलरली किसी ने एडवांस पेमेंट कर दिया, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो दोनों ही रिफ्लेक्शन नहीं होती. ठीक है. पेमेंट आनी बाकी है, वो भी इस रेशियो में नहीं दिखती मेरे को. किसी ने एडवांस पेमेंट कर दिया, वो भी मुझे नहीं दिखती. सो दिस रेशियो ओनली कवर्स कि आपको इन्वेंट्री को सेल्स बनाने में या सेल्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, बट डज नॉट कंसिडर एनीथिंग from a cash perspective, either received in advance or either to be received, which is your receivable. तब ये रेशियो हायर होना चाहिए कि लोअर होना चाहिए? आपका जो कन्वर्जन पीरियड है, so let's take situation A and situation B. Situation 30 days है, situation B let's assume 60 days. So which one is better? Yes, sir. A. Because A में दो तीन चीजें हैं. एक तो A में कंपनी को कैश जो उसकी वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक करने के लिए शायद आई एम यूजिंग वर्ड शायद कम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कैश सेल्स तक 30 दिन में पहुंच जाता है. एंड द रीजन व्हाई आई एम यूजिंग मे और शायद बिकॉज सेल्स तक पहुंच जाता है, बट वो डेटर्स में कितने दिन पैसा अटका रहता है वो भी इस रेशियो से पता नहीं लगता. दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग मे, बिकॉज अगर सेल हो जाने के बाद भी डेटर्स में बहुत समय तक पैसा अटका रहता है, तो फिर ये जो 30 डेज इसका इफेक्ट, इसका एडवांटेज खत्म हो जाता है. बिकॉज देन आप सेल्स तो कर दिए बट पैसा तो फिर भी अटका हुआ है आपका कस्टमर के पास. सो दैट इज द लिमिटेशन जो हमने डिस्कस किया कि इट डज नॉट गेट एनी रिफ्लेक्शन और डजंट गिव मी एनी विजिबिलिटी ऑफ द रिसीवेबल और द कैश इन एडवांस. बट यस, अगर मैं उस चीज को हटा दूं, so situation A is more favorable for the management because आप जल्दी से आप ज्यादा शॉर्टर टाइम में या ज्यादा कुछ टर्न अराउंड में सेल्स इस साइकिल में सेल्स तक पहुंच जाते हैं. ठीक है. सो इफ से सपोज अगर किसी कंपनी का ये बहुत हाई है, लेट्स से सिचुएशन बी है, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीजंस ये हाई हो सकता है? क्या रीजंस हो सकते हैं?
क्या रीजन हो सकते हैं? एक ही रीजन हो सकता है, बिकॉज न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है 365 डेज का, राइट? सो इट्स 365 अपॉन ITR, करेक्ट? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। न्यूमरेटर तो फिक्स है, वो आपके हाथ में तो है नहीं, डेज इन द ईयर। इस रेशियो का हाई होने का एक ही कारण हो सकता है कि ITR छोटा हो जाए। If the denominator goes down, this ratio, conversion period will go up. हाँ है ना? Yes, sir. Which means we are talking about this ratio to be on the lower side. That is the problem. और ये रेशियो कब छोटा होगा? जब आपकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये कल हमने डिस्कस किया था कि अच्छा नहीं है कंपनी के लिए अगर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बना के आप रखते हो और वो सेल ही नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम है। वो सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो ITR में पता नहीं लगता है, वो इस रेशियो में पता लगता है। दैट इज वाई ये दो रेशियो को साथ में जनरली एनालाइज किया जाता है टू गेट द विजिबिलिटी टिल दिस पीस, सेल्स तक। हाँ जी, विल पॉज है। कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ। एनी क्वेश्चंस? ओके। In this ITR, what this conversion period, we are considering sales part now. हाँ, सेल्स भी आ गया इसमें, करेक्ट। इसमें वो ये वाला पार्ट But इसमें कवर नहीं है। but these are not peer comparison. No? Then in that case, if you want to have a ITR, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू ना कि ये प्योर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला कॉन्सेप्ट में लगाना चाहूंगा उसके नहीं है, बट अगर मैनेजमेंट को इन्वेंट्री को सेल से लिंक करके देखना है, सो दिस रेशियो गिव्स दैट विजिबिलिटी। but this will also give us the aging of your होल्डिंग पीरियड का एजिंग receivables. रिसीवेबल का एजिंग इतना अच्छा इस रेशियो में नहीं दिखेगा, नेक्स्ट रेशियो में दिखेगा जिसमें डेटर्स कन्वर्जन का आएगा ना। अभी ये इसमें आपको एजिंग ऑफ द इन्वेंट्री दिख जाएगी, एजिंग ऑफ द डेटर्स नहीं दिखेगा। Okay. क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा इन्वेंट्री कितने दिनों में सेल्स में कन्वर्ट होती है, बट वो सेल्स वो डेटर्स कितने दिन में कैश में कन्वर्ट होते हैं, वो इस रेशियो में इतना अच्छा नहीं दिखेगा। अभी नेक्स्ट रेशियो आएगा डेटर्स कन्वर्जन पीरियड, वहां पे वो भी पीस दिख जाएगा। कोई और डाउट इस रेशियो में? ठीक है। हाँ, दिस इज व्हाट यू डिस्कसिंग, डेटर्स कलेक्शन पीरियड सेम है। So it is 365 days. हेलो सर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का स्लाइड थोड़ा दिखाना। और पीछे जाऊं? You want me to go back? यस सर, और थोड़ा पीछे।
यस यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ, सिंस मोर इन्वेंट्री मीन्स मोर मनी टाइड अप, तुमने क्या हुआ सर? एनालिस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचेगा ना। हेलो, तो इसमें इससे वो डिस्कस करें कि अगर ये रेशियो हायर है, यानी इन्वेंट्री में ज्यादा पैसा अटका हुआ है ना मेरा, हाँ हाँ राइट? अगर इन्वेंट्री हायर है, इन्वेंट्री में यानी ज्यादा पैसा अटका हुआ है मेरा, और ज्यादा पैसा अटका हुआ है, हाँ तो और जब मैं 365 बाई ये रेशियो करूंगा तो ज्यादा पीरियड तक अटका हुआ अगर आता है तो दोनों गड़बड़ है ना। देखो मैं ज्यादा पैसा ब्लॉक करता हूँ बट जल्दी से सेल्स जाता है, तो ये कम प्रॉब्लम है, बिकॉज ठीक है आपने पैसा लगाया, पैसा सेल्स में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज स्मॉलर प्रॉब्लम। बट मैंने बहुत ज्यादा पैसा ब्लॉक करता हूँ इन्वेंट्री में और बहुत समय के बाद सेल होता है, तो ये एक और बिगर प्रॉब्लम है। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है कितने पीरियड में सेल्स में जाता है, वो इस रेशियो से नहीं दिख रहा, वो दिखता है इस रेशियो से, वो दिखता है इस रेशियो से कि कितने पीरियड में सेल्स में जाता है। तो इसलिए अगर हमारा पीरियड देखना है कि कितने टाइम में सेल्स में जाता है, तो ये देखना पड़ेगा कितना वैल्यू अच्छा रहता है। आपने कहा था ना कि मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से लोअर आईटीआर गुड रहता है। यहाँ एनालिस्ट लाइक टू सी ए हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। मींस एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से द हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो अच्छा है। देखो मैनेजमेंट क्या चाहता है, मेरा कम पैसा अटका रहे इन्वेंट्री में, इसलिए ये रेशियो को हमने कम की बात करा। मैनेजमेंट चाहता है मेरा कम पैसा अटका रहे और जल्दी से मेरा पैसा सेल्स में आ जाए, दोनों चीजें चाहता है वो। वैल्यू में भी कम ब्लॉक हो, 400 करोड़ की जगह 100 करोड़ इन्वेस्ट हो, दैट इज व्हाट आई एज ए मैनेजमेंट वुड वांट। बट यहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ, अगर वो 100 करोड़ पांच महीने के लिए अटका हुआ तो भी मेरे लिए बेकार है। आई वांट कि कम पैसा अटके और कम पैसा अटक के जल्दी से सेल्स में पैसा वापस आ जाए, जल्दी से इन्वेंट्री का सेल्स हो, सेल्स से डेटर्स आए, डेटर्स से कैश आए, ये जो पीरियड है ये भी बहुत जल्दी हो। ये दोनों चीज इज व्हाट आई एज ए मैनेजमेंट वुड वांट। बट ये जो रेशियो है, ये वाला रेशियो आपको पीरियड नहीं दिखा रहा है, उसके लिए मुझे इस रेशियो पे आना जरूरत है। इसलिए 90% मैनेजमेंट ये दोनों रेशियो को साथ में देखते हैं, देन ओनली इट गिव्स देम द फुल पिक्चर। इनफैक्ट दोनों भी नहीं, ये जो तीसरा रेशियो है ये भी साथ में देखती है, तभी ये जो साइकिल मैंने आपको बताया, ये साइकिल पूरी दिखती है, ये साइकिल पूरी दिखनी शुरू हो जाएगी, यहां तक दिख जाएगी। एक मैं ये रेशियो भी करा देता हूँ, फिर आई थिंक ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज वो साइकिल पूरी हो जाएगी। So this is debtors collection period, यानी 365 days divided by DTR. Debtors turnover ratio हम लोग कर चुके हैं। So same concept है, अगर let's assume this answer comes out to be let's assume 20 days. इसका मतलब क्या है, मेरे जो डेटर्स क्रिएट हुए हैं ऑन एन एवरेज 20 डेज में कलेक्शन हो जाता है, यानी ऑन एन एवरेज 20 डेज में डेटर्स का मेरा कैश आ जाता है। देख लीजिए इसका थ्योरी देख लीजिए। तो debtors collection period indicates the average time taken to collect your debts. Collect your debt means debtors कैश में कितने दिन में आ जाते हैं ऑन एन एवरेज। इन अदर वर्ड्स, अगर ये टाइम को हम कम कर दें, 20 से 15 दिन कर दें, यानी मेरी जो डेटर्स जो पैसा 20 दिन के लिए अटकता था वो 15 दिन में वापिस आ जाता। तो जितना ये डेज कम होगा उतना अच्छा, बिकॉज उतना जल्दी मेरा पैसा वापस आ रहा है। It enables the enterprise to compare the real collection period.
ठीक है. सो इट गिव्स यू विजिबिलिटी ऑफ आपने जो डेटर्स है, कस्टमर है, उनको कितना क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, वो इस रेशियो में नंबर ऑफ डेज में पता लगता है. हाँ जी, कोई डाउट नहीं तक. और जैसे ही इस रेशियो को साथ में देखते हैं, अब आप देखिए. सो लेट मी पुट अ डिफरेंट कलर. अब देखिए यहां तक ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ने देखा आईटीआर ने. फिर यहां से यहां तक आपके इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड ने देखा. और अब यहां से यहां तक आपके डेटर्स कलेक्शन पीरियड ने देखा. So this gives you full visibility of this cycle. So generally इन तीनों रेशियो को आप साथ में देखते हो, this helps you to understand क्या हो रहा है. So let me give an example to this. अगर मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कम पैसा अटका हुआ है, so यानी ये तो अच्छा है, कम पैसा अटका हुआ है, बट ये पीरियड बहुत ज्यादा हो जाता है, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड. यानी पैसा तो कम अटका हुआ है, बट वो बहुत ज्यादा समय तक अटका हुआ है, और उसके ऊपर डेट सेल्स डेटर्स में चली जाती है, और डेटर्स में बहुत देर तक अटकते हैं. देन इट्स नॉट गुड फॉर मी, बिकॉज आई एग्री, आई एम इन्वेस्टिंग लेस मनी इनटू माय वर्किंग कैपिटल, बट वो लेस मनी वापस कैश में कन्वर्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है. सो दैट्स नॉट वेरी गुड फॉर मी. वीजा वेज अगर ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में मेरा पैसा ज्यादा अटका हुआ है, ठीक है, बट ये छोटे छोटे पीरियड है, इन्वेंट्री टर्नओवर, सॉरी, इन्वेंट्री कन्वर्जन और डेटर्स कन्वर्जन कलेक्शन पीरियड, यानी ज्यादा पैसा अटकता है, ठीक है, बट वो जल्दी से सेल्स होता है और जल्दी से कैश आता है, तो वो रिलेटिवली मोर बेटर प्रोपोजिशन है फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. is this clear? Let me give you an example so that आपको समझ आएगा. जो एग्जाम्पल्स है, एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है, होटल इंडस्ट्री, when we operate for these segment of the clients, they generally follow this model. The second model is a huge investment in the inventory side. ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री तो नहीं होती, because they are working more on the services business. So what I meant when I say inventory means उनकी वर्किंग कैपिटल में बहुत ह्यूज अमाउंट ब्लॉक होते हैं, बट वो बहुत जल्दी से कन्वर्ट होते हैं, बिकॉज ये जो बिजनेसेस हैं जनरली यहाँ के ये बिजनेस में इमीडिएट सेल्स होती हैं, और जनरली सारा अपफ्रंट कैश होता है या ऑन द सेल कैश होता है. जनरली डेटर्स क्रिएट नहीं होते. फॉर एग्जांपल व्हेन यू बुकिंग योर टिकट्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग प्राइमरली मोर अबाउट द प्री कोविड सिनेरियो, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें डिफरेंट चल रही है एविएशन सेक्टर में, तो मैं उसको नहीं अभी लेके आना चाहता. ठीक है, सो प्री कोविड वाले आप टिकट्स अपने एडवांस में बुक करते थे, और प्रोबेबली ऑन द सेम डे बुक करते, मैक्सिमम अगर मैं एक्सट्रीम सिनेरियो मानूं. ठीक है, विच मीन्स एयरलाइंस को सर्विसेज देने से पहले ही पैसा मिल जाता है. सो दिस टेक्निकली, except few cases for the corporate tie-ups, for some VIP tickets, उसको छोड़ के most of them उनका जो सेल्स है वो डायरेक्टली कैश में पहुंच जाता था, वो डेटर्स होते ही नहीं थे. ठीक है, सिमिलरली फॉर द होटल इंडस्ट्री, ठीक है, आप जब बुकिंग करते हो, यू पे सम अमाउंट, यू बुक द होटल, एंड जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप फुल पेमेंट करके चेकआउट करते हो. सो अगेन उनका भी जो है सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट हो जाता है. बहुत कम सिनेरियोज होते हैं यहाँ पे डेटर्स क्रिएट होते हैं. If I look at the examples of, so suppose example of manufacturing businesses, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट को, और आप किसी होलसेलर को सेल करते हैं, और वो होलसेलर आगे रिटेल को सेल करते हैं, तो वहां पे जनरली आपको इमीडिएट कैश नहीं मिलता है. सो होलसेलर आपको कुछ पेमेंट ऑफ कैश देता है, कुछ कहता है मैं माल बिकने के बाद दूंगा. and that's the way the cycle works. Like an FMCG business, FMCG follows this cycle. वहां पे सेल्स डेटर्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर डेटर्स कैश में कन्वर्ट होते हैं, काफी लंबी चेन, टाइम लगता है वो. So you need to have an visibility कौन सी इंडस्ट्री किस पैटर्न को फॉलो करती है. Any questions?
And any doubt in this in terms of जो मैंने इंडस्ट्री का भी आपको बताया in terms of how we plot different industries. Last time, any questions on this? Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. You are audible. Okay. Okay. So in no question, I will move to the next ratio. ना ये तो अभी अब इस साइकिल में एक और एलिमेंट होता है, ये जो मैंने रॉ मेटेरियल परचेज करा, इस रॉ मेटेरियल को भी हो सकता है मैं क्रेडिट पे खरीद लूं। ठीक है, इस रॉ मेटेरियल को भी हो सकता है मैं क्रेडिट पे खरीद लूं। ये वाला जो पीस है रॉ मेटेरियल परचेज का क्रेडिट वाला जो पीस है वो भी अभी तक साइकिल में कवर नहीं होता। इस पीस को कवर करने के लिए ये रेशियो है, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ठीक है, सॉरी, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ठीक है, आप कितने दिन में अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो ऑन एन एवरेज? सो विच मींस अगर 40 डेज है ऑन एवरेज, आप अपने क्रेडिटर्स को 40 डेज में पेमेंट कर। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है ना, अगर आपका डेटर्स कलेक्शन पीरियड, आपका डेटर्स कलेक्शन पीरियड लेट्स अज्यूम अगर 30 डेज है और आपका क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 20 डेज है, दिस इज नॉट गुड, बिकॉज देन आप अपनी पॉकेट से पेमेंट कर रहे हैं। जो वेंडर फाइनेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो आपने यूज नहीं किया। मैडम, अगर मैं रिवर्स करता हूं, मैं इसको 20 रखता हूं और इसको 30 रखता हूं, यहाँ पे मैं वेंडर फाइनेंसिंग यूज कर रहा हूं। So your debtors collection period should always be less than your creditors payment period, or at least equal. Can you please repeat on this point? So अगर मेरे debtors collection period 30 दिन है, यानी मैं 30 दिन में अपने डेटर्स से पैसा कलेक्ट करता हूँ और क्रेडिटर्स को 20 दिन में दे देता हूँ, यानी 10 दिन में अननेसेसरी अपनी पॉकेट से पैसा ब्लॉक कर रहा हूँ ना। आई एम नॉट यूजिंग वेंडर फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट। बट अगर नेक्स्ट सिचुएशन रिवर्स कर देता हूँ कि मैं अपने डेटर्स से 20 दिन में पैसा ले आता हूँ बट अपने क्रेडिटर्स को 30 दिन में देता हूँ, सो आई एम यूजिंग अ वेंडर फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैं फिर अपने क्रेडिटर्स को बहुत ज्यादा पैसा ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ अपने क्रेडिटर्स पेमेंट। How this vendor financing comes into this picture? क्योंकि आपने वेंडर से
पैसा वापस ले आए ना जल्दी से, और उस पैसे को ही यूज कर रहे हो आगे वर्किंग कैपिटल में। ये वेंडर फाइनेंसिंग डायरेक्ट नहीं, इम्प्लाइड वेंडर फाइनेंसिंग। Implied. Because direct vendor financing, I think it has you give discount to Yeah, the vendor used to give the discount and all that to maintain their cash flows and all. Yeah. Any question? Next is your cash cycle. Cash cycle is a total of everything. Is your inventory conversion period. Inventory conversion period मतलब raw material तक inventory तक पहुंचने के लिए। फिर debtors collection period. Debtors collection period is आपका sales से cash तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और creditor payment period जो आपको raw material के basis पे जो payment में time मिलता है। तो अगर मेरे को इन्वेंट्री कन्वर्जन में 10 दिन लगते हैं और डेटर्स कलेक्शन में 10 दिन लगते हैं, यानी 20 डेज के लिए मेरा कैश ब्लॉक रहेगा वर्किंग कैपिटल में। बट मेरे क्रेडिटर ने मुझे 15 दिन का क्रेडिट पीरियड अगर दिया है, तो उस 20 दिन में से 15 दिन मेरे को क्रेडिटर्स के थ्रू पेमेंट मिल जाएगी, बट 5 दिन मुझे अपनी कैश से मैनेज करना पड़ेगा। मुझे 5 दिन का कैश बिजनेस में रोटेट करना पड़ेगा, बाकी काम हो जाएगा क्योंकि क्रेडिटर ने टेक केयर कर दिया। Have you understood what this ratio means? I repeat, अगर मेरा इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड 10 दिन है, मेरा डेटर्स कलेक्शन पीरियड 10 दिन है, इसका मतलब क्या है? मेरे को बिजनेस में 20 दिन का कैश लगाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए या मूव करने के लिए। मेरे को वर्किंग कैपिटल में एटलीस्ट 20 दिन कितना पैसा लगाना पड़ेगा कि 20 दिन तक ऑपरेट कर सके हो। यस और नो? Yes. ठीक है। अब इस 20 दिन की फंडिंग में से 15 दिन मुझे क्रेडिटर ने दे दिया कि ठीक है आप 15 दिन के बाद पेमेंट कर देना। तो फ्रॉम 20 days आई डोंट नीड टू वरी अबाउट 20 days because 15 has been indirectly funded or taken care by my creditor. Hence my cash cycle becomes 5 days, यानी 5 दिन में ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है मेरे पर्सपेक्टिव। इसलिए माइनस किया हुआ है क्रेडिटर टर्नओवर, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड माइनस किया हुआ। It takes a time to convert its investment into back to the cash. आइडियली मुझे 20 दिन होना चाहिए, 20 दिन लगते हैं मुझे कैश को वापस कैश में लाने में, बट उस 20 दिन में से 15 दिन कोई और टेक केयर कर देता तो मेरे लिए तो 5 दिन ही में हो जाता है। ऐसे समझना है इसे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, अगर नहीं तो ये देख लीजिए, कैश साइकिल की थ्योरी देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। I told you that it has 3 parts. First part takes care of the inventory part.
Then I have second part, which is my debtors collection period. It represent sales to cash, कितना टाइम लगेगा सेल से कैश के बाद. और थर्ड पार्ट, which is implied kind of in funding part, कि मुझे क्रेडिटर से कितना टाइम मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग के पेमेंट से वहां से कितना फंडिंग मिल रहा है. हाँ जी. Any question? हेलो सर. Yeah. सर कैश साइकिल में हमारा जो ये सेल्स के पहले तक का ही ना बताएगा कि कितना हमारा कैश फंसा हुआ है इस इन्वेंटरी तक में. Sorry, दोबारा बोलो. ये जो कैश साइकिल में हमारा जो है कैश कितना फंसा हुआ है इन्वेंटरी तक में, यही बताएगा ना सेल से पहले. नहीं, दोबारा सेल्स से पहले क्या बताएगा? सेल्स से पहले हमारा कैश कितना फंसा हुआ है इन्वेंटरी में, ये बता रहा है ना. नहीं, सेल से पहले कितना फंसा हुआ है वो भी बता रहा है, सेल्स के बाद कितना फंसा हुआ है वो भी बता रहा है, दोनों बता रहा है. क्योंकि सेल्स के बाद डेटर्स में फंसेगा जो पैसा वो भी बता रहा है ना. अ, यहाँ लिखा हुआ है इट मेजर्स हाउ लॉन्ग कैश इज टाइड अप इन द इन्वेंटरी बिफोर द इन्वेंटरी इज सोल्ड. कहाँ लिखा? फर्स्ट स्लाइड में सर. यस सर, यहाँ. हम्म. Yeah, in other words, the cash conversion cycle calculation measures how long cash is tied up in inventory before the inventory is sold. जो स्लाइड में स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उस स्लाइड में बताओ कहाँ लिखा हुआ है. This is, in other words, the cash conversion cycle calculation is mm, उसके आगे नहीं पढ़ोगे क्या? एंड कैश इज कलेक्टेड and फ्रॉम द cash. कस्टमर भी तो लिखा हुआ है. पूरा पढ़ो ना. सर तो कस्टमर से मिलेगा वो सेल्स के बाद ही ना. तो सेल्स के पहले और सेल्स के बाद दोनों कवर कर रहा है ना. अ, जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है ये वाला, हम्म. ये सेल्स के पहले का कवर करता है. और ये वाला जो डेटर्स कलेक्शन पीरियड है ये सेल्स के बाद का कवर करता है. अ, ठीक है सर. Any other questions?
मैंने बता दिया cash cycle. How long does it take for the firm to go from cash to cash? You start from cash, you purchase raw material, and then you move back to the cash to purchase the next raw material cycle. So that's what the cycle is. And we know what is working capital. Working capital is current asset minus current liability that we discussed how this gets impacted. Illiquidity piece is what हम next ratio में करेंगे. And कुछ पूछना, so this brings us to the end of activity ratios. We've done margin ratios, and second we have completed now activity ratios. What will start next, probably we'll do tomorrow, is this next section of the ratios, which would be liquidity ratios. तो activity ratios में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए. Last time, any questions on activity ratios before we finally wind up this? चलिए, ठीक है. So in case no question, I take that as no questions for activity ratio. And which means we have completed, as I mentioned earlier, margin ratios and activity ratios. बीच में return ratios थे, वो मैंने अभी रोके हुए हैं. Probably will do it later. So if you're looking at from a chronology of the slides or of this PPT, so though ratios 2 point and return ratios, these are the two sections that we've not yet done. The other two sections, which is activity and the margin, is what we've done so far. Okay, चलिए, we'll close for the day, and the next section of the ratios will continue in the next class. Thanks, bye.